Assalamualaikum. My name is Dr. Hamda Saqib and today we'll be discussing lecture number 14 of Biochemistry and Genetics 2. Today's topic is of isoenzymes, coenzymes, proenzymes and clinical enzymology. The review of the previous lecture includes these aspects and these are the learning outcomes of today's lecture. Coenzymes. Coenzymes are organic molecules that are required by certain enzymes to carry out catalysis. जब हमने एंजाइम का स्ट्रक्चर पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, तो एंजाइम पे एक सर्टन जगह होती है विच इज़ द नॉन कैटालिटिक साइट. उसके ऊपर आपके सर्टन को एंजाइम्स या को फैक्टर्स लगते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं. तो को एंजाइम्स बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एंजाइम को हेल्प करते हैं स्पीडिंग अप द केमिकल रिएक्शन. कोएंजाइम इन ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शंस. तो जो कोएंजाइम्स हैं जैसे कि हमने पढ़ा वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड दीज इंक्लूड सर्टन विटामिन्स, कोएंजाइम्स ए एंड क्यू एंड सर्टन group transferring molecules such as NAD, which is a part of niacin, which is vitamin B9, and NADP, which is also part of niacin, and FAD is a part of vitamin B2. Similarly, coenzyme A, coenzyme Q, and thiamine, which is vitamin B1, pyridoxine is vitamin B6, biotin and carbamide coenzyme, which are vitamin B12. तो बेसिकली ये सब बताने का मकसद ये था कि हमने लास्ट लेक्चर में भी ये बात डिस्कस की थी कि वाइटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट कोएंजाइम्स होते हैं फॉर योर एंजाइम्स एंड दैट इज़ वाई द इनटेक ऑफ वाइटामिन्स इज़ वेरी नेसेसरी टू कैरी आउट द मेटाबॉलिक फंक्शंस इन आवर बॉडी. और वाइटामिन्स आपको पता है दैट दे आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. सो वाइटामिन्स एंड कोएंजाइम्स ए एंड क्यू आर इंक्लूडेड under coenzymes because coenzymes are organic molecules. So the key word is organic molecules. Then there are certain things known as cofactors. Cofactors are often classified as inorganic substances that are required for the increase in the rate of catalysis. तो cofactors जो होते हैं these are inorganic substances. They compose of ions and solutes. जबकि आपके जो कोएंजाइम्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो कोएंजाइम और कोफैक्टर में ये फ़र्क है कि कोएंजाइम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड कोफैक्टर्स आर क्लासिफाइड एज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज जिंक आयन which is an important cofactor of the carbonic anhydrase enzyme. Similarly, zinc ion is an also important cofactor of alcohol dehydrogenase enzyme. Similarly, your ferric and ferrous ion are important cofactors for the cytochrome and hemoglobin protein, and so on. So you know the difference between coenzymes and cofactors now. Now, what is a proenzyme or a zymogen? The inactive precursor of an enzyme is known as proenzyme or a zymogen. तो जो एंजाइम की वो फॉर्म जो कि इनएक्टिव होती है उसको आप zymogen कहते हो. A zymogen requires a biochemical change such as hydrolysis reaction revealing the active site or changing the configuration to reveal the active site for it to become an active enzyme. तो zymogen एक inactive precursor होता है एंजाइम का और उस zymogen में certain biochemical changes आएंगे जिसकी वजह से जब active site expose होगी फिर वो inactive enzyme या zymogen active enzyme में convert हो जाएगा. Certain examples of zymogens are एंजियोटेंसिनोजेन. और एंजियोटेंसिनोजेन फिर कौन सा बनाता है इम्पॉर्टेंट कंपाउंड एंजियोटेंसिन. सो एंजियोटेंसिनोजेन इज़ अ zymogen and angiotensin is a active compound. Similarly, trypsinogen is a inactive precursor or a zymogen and trypsin is a active enzyme. तो आपको पता होगा जब आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा ट्रिप्सिन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स टू रिलीज अमाइनो एसिड्स. सिमिलरली काइमोट्रिप्सिनोजेन इज़ कन्वर्टेड टू काइमोट्रिप्सिन. तो काइमोट्रिप्सिनोजेन जो होता है वो zymogen होता है. सिमिलरली पेप्सिनोजेन इज़ द zymogen and it is converted to pepsin. And similarly other examples. What are isoenzymes? Isoenzymes or isozymes are multiple forms of the same enzyme that catalyze the same chemical reaction. तो
आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं? एक ही एंजाइम की मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं जो कि एक ही किस्म का केमिकल रिएक्शन करवाती हैं, और उनमें फ़र्क बहुत माइनर फ़र्क होता है, जैसे कि उनकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी में फ़र्क होगा डिफरेंट आइसो एंजाइम्स की, उनकी काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क होगा, उनके अमाइनो एसिड सीक्वेंस में फ़र्क होगा, या उनके अमाइनो एसिड के कॉम्पोजिशन में फ़र्क होगा। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी का आपको मैंने बताया था कि जब हम एक इलेक्ट्रोड में किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड को डालते हैं तो हम उनकी मोबिलिटी चेक करते हैं कि वो कितनी तेज़ी से कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल करते हैं। तो कुछ मॉलिक्यूल तेज़ी से कर जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। ये लाइपोप्रोटीन्स में आपको एग्जांपल दी थी। सिमिलरली काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि वो कितनी जल्दी केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। थर्ड इज़ द अमाइनो एसिड सीक्वेंस, के उनके अंदर अमाइनो एसिड सीक्वेंस में कोई फ़र्क होगा या अमाइनो एसिड इट्सेल्फ की कोई कॉम्पोजिशन जो होगी वो चेंज होगी। सो जो आइसो एंजाइम्स होते हैं वो एक ही एंजाइम्स की मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं और उनके आपस में फ़र्क माइनर फ़र्क होता है इन बेसिस पे। लाइक मेंबर्स ऑफ अदर प्रोटीन फैमिलीज, these protein catalysts और isozymes arise through gene duplication, कि एक ही जीन जिसने डिफरेंट टाइप्स के आइसोएंजाइम्स बनाने हैं, वो जीन कैसे बनाती है? वो जीन डुप्लीकेट होके मुख्तलिफ एंजाइम आइसोजाइम्स बनाएगी। आइसोजाइम्स में एग्जिबिट सटल differences in properties such as sensitivity to particular regulatory factors or substrate affinity, for example hexokinase and glucokinase, that adapt them to different or specific tissues or circumstances। तो ये कह रहा है कि कुछ चेंजेस जो आइसोजाइम्स का आपस में आता है वो ये हो सकता है जस्ट लाइक हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज जो एंजाइम्स होते हैं। तो जो ग्लूकोकाइनेज होता है वो सिर्फ क्या करता है? ग्लूको मतलब ग्लूकागॉन के अंदर इन्वॉल्व होता है इन इट्स ग्लूकोकाइनेज के जो जिसने उसने केमिकल रिएक्शन में पार्ट प्ले करना होता है। लेकिन जो हेक्सोकाइनेज है वो 6 शुगर कंपाउंड्स जो हैं उन सबको जिनसे कहते हैं कैटलाइज कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो ग्लूकोकाइनेज है वो सिर्फ ग्लूकागॉन मैंने पढ़ा था, वो सिर्फ ग्लूकोज को कैटलाइज कर सकता है बाय एडिशन ऑफ फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। तो आपने ये याद रखना है कि हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज जो उनसे होते हैं वो सिमिलर होते हैं, क्योंकि हेक्सोकाइनेज भी ग्लूकोज को कर सकता है कैटलाइज। बिकॉज आपको याद होगा ग्लूकोज का क्या केमिकल फार्मूला था? C6H12O6। तो C6 से मुराद ये है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन्स हैं, तो इट्स अ हेक्सोज शुगर, मतलब 6 कार्बन वाले शुगर्स को आप हेक्सोज शुगर्स कहते हो। तो जो हेक्सोकाइनेजेस होते हैं वो 6 शुगर कंपाउंड्स को कैटलाइज करते हैं, लेकिन जो ग्लूकोकाइनेज होता है वो सिर्फ ग्लूकोज को करता है। तो उसका मतलब ये है कि हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज आपस में एक दूसरे के आइसोजाइम्स हैं। वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हैं जो कि ग्लूकोज को इन्वॉल्व करता है। सो देयर सटल डिफरेंसेस इन देम। सम isozymes may also enhance survival by providing a backup copy of an essential enzyme। तो isozymes इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी भी आपकी बॉडी में अगर एक आइसोजाइम कम पड़ गया तो उसके साथ का दूसरा आइसोजाइम उस केमिकल रिएक्शन को टेक प्लेस करवा सकता है। ये हमने ऑलरेडी ये बात पढ़ी कि किन बेसिस पे चेंजेस होते हैं इन आइसोजाइम्स। तो आइसोजाइम्स की तो इलेक्ट्रिक फोरेटिक मोबिलिटी में फ़र्क आता है, हीट स्टेबिलिटी में भी फ़र्क आता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के जो आइसोजाइम्स होते हैं उनमें कुछ हीट स्टेबल होते हैं और कुछ हीट लेबाइल होते हैं। जो हीट स्टेबल होते हैं वो हीट बढ़ने पे वो डीनेचर नहीं होते, लेकिन जो हीट लेबाइल आइसोजाइम्स होते हैं वो हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो जिसे कहते हैं डीनेचर हो जाते हैं। सिमिलरली इनहिबिटर, कुछ आइसोजाइम्स जो एक पर्टिकुलर ग्रुप के होते हैं वो इनहिबिट हो सकते हैं किसी भी इनहिबिटर की वजह से और कुछ नहीं हो सकते। सिमिलरली Km प्रॉपर्टी का मतलब है कि कितनी तेज़ी से एक रिएक्शन करवाता है आइसोजाइम। तो ग्लूकोकाइनेज जो सा है जैसे मैंने बताया वो बहुत जल्दी रिएक्शंस करवाता है और हेक्सोकाइनेज उसकी निस्बत कम स्पीड पे रिएक्शंस करवाते हैं। कोफैक्टर्स में फ़र्क हो सकता है। फॉर एग्जांपल कुछ आइसोजाइम्स जो एक ग्रुप के होते हैं वो उनको डिफरेंट कोफैक्टर्स की ज़रूरत पड़ सकती है और कुछ को डिफरेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। सिमिलरली टिश्यू लोकलाइजेशन,
अब लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो एक एंजाइम होता है उसकी 5 किस्मों के आइसोजाइम्स होते हैं, LDH1, LDH2, LDH3, LDH4 एंड LDH5। मतलब 5 आइसोजाइम्स होते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के। तो जो LDH1 जो आइसोजाइम होता है वो हार्ट में प्रेजेंट होता है, जबकि LDH जो टाइप 5 आइसोजाइम है वो मसल में प्रेजेंट होता है। आई मीन सिमिलरली एंटीबॉडीज़, तो एंटीबॉडीज़ का भी फ़र्क आता है आइसोजाइम में कि कुछ जो आइसोजाइम्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी से बाइंड कर सकते हैं और कुछ आइसोजाइम्स किसी भी एंटीबॉडी से बाइंड नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंट जो आइसोजाइम्स होते हैं जो कि एक ही पर्टिकुलर ग्रुप के होते हैं जिन्होंने एक ही केमिकल रिएक्शन करवाना होता है, उनमें आपस में जो फ़र्क है वो इन प्रॉपर्टीज़ पे आ सकता है और ये बातें आपको याद होनी ज़रूरी हैं। नाउ विल डिस्कस क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी। क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी से हमने ये पढ़ना है कि जब हम लोगों के ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो ब्लड टेस्ट में हम सर्टन को टेस्ट लेके देते हैं जिसे हमने जज करना होता है। जब हम पेशेंट की क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जब हमने पेशेंट की जब हिस्ट्री ली होती है तो हमने जिस डायग्नोसिस पे पहुंचे अब हमने उसको प्रूव करना है, तो हम पेशेंट को कुछ टेस्ट लिख के देते हैं, ब्लड टेस्ट, कि आप ये टेस्ट करवा लें जाके। उन ब्लड के अंदर हम कुछ एंजाइम्स का लेवल बढ़ा हुआ देखते हैं और जब वो एंजाइम्स के लेवल बढ़े हुए होते हैं तो हम पर्टिकुलर डिजीज़ को डायग्नोस कर लेते हैं। तो वो मैं आपको सिखाऊंगी कि हम कैसे करते हैं। प्लाज्मा एंजाइम्स मतलब कि आपके ब्लड के जो एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो एक खुद प्लाज्मा में सिक्रीट हो रहे होते हैं फ्रॉम द सेल्स, और नंबर 2 वो सेल्स के नेक्रोसिस की वजह से वो प्लाज्मा में वो रिलीज़ हो जाते हैं। फर्स्टली, a relatively small group of enzymes are actively secreted into the blood by certain cell types। मतलब कुछ सेल्स खुद ब्लड में एक्सक्रीट करवाते हैं एंजाइम्स को। फॉर एग्जांपल, लिवर सिक्रीट्स zymogens, inactive precursors of enzymes involved in blood coagulation। तो ब्लड कोएगुलेशन अगर आपने फिजियोलॉजी में पढ़ी है तो उसमें जिसे कहते हैं एक जिसे कहते हैं वो होता है, आई थिंक एक इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक टाइप की होती है। उसमें सर्टन आपके रिलीज़ हो रहे होते हैं co-factors which are required for the blood coagulation, and these co-factors are activated to their active form such as C5a, C5b and certain like that। तो बेसिकली कहने का मकसद ये होता है, मैंने एक्चुअली ये एग्जांपल आपको कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स की दी है, सिमिलरली आपके कोगुलेशन के फैक्टर्स भी होते हैं जो कि आपका लिवर रिलीज़ करवाता है। इसका मतलब ये है कि लिवर ने नॉर्मली इनको ब्लड में रिलीज़ करवाना है, ठीक है। तो अगर आपके ब्लड में ये कोगुलेशन के फैक्टर्स मौजूद होते हैं तो इसका मतलब ये है कि लिवर ने उनको खुद रिलीज़ प्लाज्मा में करवाया हुआ है। लेकिन कुछ एंजाइम्स होते हैं लिवर के सेल्स में जो कि सेल बाउंड होते हैं और लिवर उनको रिलीज़ नहीं करवाता, और अगर वो वाले एंजाइम्स आपके ब्लड में के लेवल में बढ़ गए तो इसका मतलब ये है कि आपके लिवर के सेल्स को कोई इंजरी हुई है जिसकी वजह से वो एंजाइम्स जो कि सेल्स के अंदर होने चाहिए थे और ब्लड में रिलीज़ नहीं होने चाहिए थे वो रिलीज़ हो गए हैं बिकॉज सेल्स को इंजरी हुई है। सच एज AST, एस्पार्टेट ट्रांसफरमाइनेज एंड ALT, एलानिन ट्रांसएमिनेज। तो ये जो एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज और एलानिन ट्रांसएमिनेज है, जब AST ALT लेवल्स करवाते हैं किसी बंदे को जिसमें हम सस्पेक्ट कर रहे होते हैं उसको एक्यूट लिवर इंजरी हुई है बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस, ड्रग अब्यूज़ और एनीथिंग लाइक दैट, या पेनाडोल की गोलियां जो लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं उनको एक्यूट लिवर इंजरी हो जाती है। तो जब उनके ब्लड के अंदर एकदम से 1000-fold लेवल बढ़ जाता है, मतलब कि नॉर्मल से 1000 गुना ज़्यादा AST और ALT के लेवल्स आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके लिवर को कोई इंजरी हुई है जिसकी वजह से वो एंजाइम्स जो कि नॉर्मली लिवर के सेल्स के अंदर महदूद होने चाहिए थे वो रिलीज़ होकर ब्लड में आ गए हैं। तो इस तरह हमें टेस्ट की वजह से पता चलता है कि ब्लड में अगर कुछ एंजाइम्स का लेवल ज़्यादा आ गया जो कि नहीं आना चाहिए था, वहाँ से हम जज कर लेते हैं कि बंदे के लिवर को या किसी भी ऑर्गन को इंजरी हुई है। और इसके लिए आपका क्लिनिकल नॉलेज अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे लिवर के सेल्स के अंदर नॉर्मली ALT और AST होते हैं, वो ब्लड में रिलीज़ नहीं होते। सिमिलरली पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम जो होता है वो पैनक्रियाज के सेल्स में होता है, वो ब्लड में रिलीज़ नहीं होता।
एंड सिमिलरली आपके मसल्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं, आपके ब्रेन के अंदर एंजाइम्स होते हैं, और अगर इन ऑर्गन्स को कोई इंजरी आती है तो ये एंजाइम्स जो कि सेल बाउंड थे वो रिलीज़ हो जाते हैं आपके ब्लड में, और जब आप उनका वो टेस्ट करवाते हो उस एंजाइम का ब्लड का, तो आपको पता चल जाता है कि इस बंदे की ये एंजाइम्स बॉडी में बढ़ी हुई हैं और ये उसको डिज़ीज़ चल रही है।